हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी वेलकम यू चर्च। आइए हम प्रार्थना करेंगे स्तुति आराधना चालू होने से पहले। जीसस, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपका उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु, जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठा है प्रभु, मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में है प्रभु। प्रभु जैसे प्रभु हम आगे आराधना करेंगे प्रभु, आपकी उपस्थिति प्रभु हम सब में बनाए रखे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सारा प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस। शुक्रिया क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड प्रभु आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु हर सुबह प्रभु हर शाम प्रभु आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस तुमसा कोई
कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। चाहे तुमको दिल
Jesus, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus, for your presence, Lord. Oh, thank you, Jesus, Lord. You're the name above all names, Lord Jesus. Oh, yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Good morning, church. Praise the Lord. Once again in your presence to share the bread and wine. Hope all are well, in good health. God has kept us. Come, let us read the scripture. 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 25. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night and which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Right? Yes, we'll remember right from the beginning, God had a plan. As it says in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall have everlasting life. Yes, that is the reason Jesus went on the cross, that we may have this everlasting life. Come, let us pray as we partake in this and remember the great price that Jesus paid for us and the life of abundance that he has given us. Lord, we thank and praise you, Lord, for this time, O Lord. We come into your presence, O Lord Jesus. We remember, O Lord, the suffering that you went through, O Lord, on the cross. Lord, you broke your body, O Lord Jesus, so that, O Lord, we may be freed of all our sicknesses, O Lord Jesus, all our pains, O Lord Jesus. You took all the pain, O Lord, so that we shall be made free, O Lord. We pray and believe, O Lord Jesus, that you finished the work on the cross for us, O Lord Jesus. You paid the price for us, O Lord. You redeemed us, O Lord Jesus. You bought us. You reconciled us with the Father, O Lord. By the shedding of your blood, O Lord, you took all our iniquities away from us, O Lord. You cleansed us, O Lord, made us worthy of your presence, O Lord Jesus. Yes, Lord. By ourselves we are not worthy, O Lord, but you made us worthy, O Lord, to come into the Father's presence, O Lord Jesus. Thank you, O Lord, for all the wonderful things that you did for us, O Lord. We pray, O Lord Jesus, that and ask you once again, O Lord, to forgive us, O Lord, for every wrong that we have done, O Lord. Consciously, unconsciously, O Lord, whichever wrongs that we have done, O Lord, we ask you to forgive us, cleanse us and make us whiter than snow, Lord Jesus. Keep us prepared, O Lord, for your coming, O Lord Jesus, as we eagerly wait, O Lord. We know, O Lord, you will come in the twinkle of an eye, Lord. Help us to be ready, O Lord. We make this prayer in Jesus' precious and holy name. Amen. God bless you, church. Prepare yourself to hear from the anointed one of God. God bless you and have a good week.
morning, church. सुप्रभात कलीसिया। Today, the title of my message is Name Above Every Name. और आज का जो मेरा शीर्षक है वह मेरे प्रचार का वो है नाम जो सबसे ऊंचा है। I'm going to talk about one name today. और आज एक नाम को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। My reading is from Acts chapter 3. और मेरा जो प्रचार है वो प्रेरितों के काम 3 अध्याय से है। When Peter and John were going to the temple in the hour of prayer. और जब पतरस और यूहन्ना उस प्रार्थना के समय जा रहे थे जब प्रार्थना का समय हो गया था। The Holy Spirit had just been outpoured on 120 people, disciples. और जो पवित्र आत्मा उंडेला गया था 120 शिष्यों पर या फिर 120 लोगों पर हम देखते हैं। And this, the excitement of speaking in tongues and glorifying God was just being experienced by the disciples. और ये जो वो उत्साहित थे जैसे वो अन्य भाषा में बात कर रहे थे, परमेश्वर के चीजों को प्रकट कर रहे थे, वो सारी बातों को हम देखते हैं। Here, Peter and John are just going after being filled with the Holy Spirit. They're going to the temple to pray. और हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना जो है पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और वो प्रार्थना के लिए मंदिर या आराधनालय के लिए तरफ जा रहे थे। And they confront a person who is lame from his mother's womb. और हम देखते हैं कि उन्होंने एक ऐसे लंगड़े व्यक्ति से बात किया जो अपने माँ के गर्भ से ही लंगड़ा था। And he was begging for alms for those who were entering the temple. और हम देखते थे कि जो मंदिर में आया जाया करते थे उनसे वो भीख मांगकर अपनी आमदनी इकट्ठा करता। And Peter and John, they saw him. और पतरस और यूहन्ना ने उन्हें देखा। And he was asking them, can you give me something? और पतरस और यूहन्ना को भी देखकर वो लंगड़ा व्यक्ति उनसे भीख मांग रहा था कि उनको उसकी कोई अपेक्षा थी कि वो कुछ पाए उनसे। Now remember, this man was carried by his parents to the temple to beg. और ये याद रखे कि ये जो लंगड़ा व्यक्ति था उसके माता पिता उसे उठाकर मंदिर के बाहर रखते थे। And verse 4 says, chapter 3 verse 4, and Peter along with John fixed his gaze upon him and said, look at us. और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 4 वचन जो यो कहता है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। And they said, verse 5, and he began to give them attention. और 5वां वचन यूं कहता है, वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा, expecting to receive something from them. तक वो कुछ पाने की आशा में उनकी ओर ताकने लगा था। You know, Peter and John said, look at us. और हम देखते हैं आगे पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े व्यक्ति से कहते हैं कि हमारी ओर देख। They never said, look to God. उन्होंने ये नहीं कहा कि तू परमेश्वर की ओर देख, उन्होंने कहा हमारी ओर देख। They already filled with the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए The थे life of God was within them. और परमेश्वर का जो जीवन उनके अंदर था। Beloved, the anointing of the Holy Spirit is so important. और मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। They had the Holy Spirit in them, और पवित्र आत्मा उनके अंदर था but not upon them. उनके ऊपर नहीं था। He is inside, Holy Spirit is inside us for our own sake, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है हमारे लिए, and He is over us for others' sake. और वो हमारे ऊपर है किसी और के लिए। So the Holy Spirit upon them, और पवित्र आत्मा जो उन पर था, they said, look at us, we have something. और उन्होंने कहा कि हमारी ओर देख, हमारे पास कुछ है। When we receive Jesus and baptized in the Holy Spirit, we all have something to give. और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे साथ होता है तो हमारे पास कुछ तो ऐसा होता है जो हम लोगों को दे सकते हैं। They never said, we'll pray for you. उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम तेरे लिए प्रार्थना करें। They never said, come to church. उन्होंने ये नहीं कहा कि कलीसिया आ जा। They said, look at us. उन्होंने कहा हमारी ओर देख। Beloved, when you hold the Holy Spirit, you can tell people to look at you. और मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता हूँ, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है तो आप बोल सकते हो किसी भी व्यक्ति को तो कि हमारी ओर देख। Look at the one who is inside me. और जो मेरे अंदर है उससे तू देख। He is powerful वो सामर्थ्यशाली है and he is loving. और वो प्यार करने वाला है। He is our comforter. वो हमारे सांत्वना देने वाला He है leads us in all truth.
और सारी सच्चाई में वो हमारी अगुवाई करता He है reveals Jesus to us. और वो यीशु मसीह को हम पर प्रकट करता He है exalts the name of Jesus. और वो यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाता है। Let's see what they said in verse 6. और आइए हम देखें छठे वचन में वो पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं। I do not possess silver and gold, but what I have I give to you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Walk. और तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। Hallelujah. हालेलुया। We can give you something. हम आपको कुछ दे सकते हैं। We don't have silver and gold. हमारे पास सोना या चांदी नहीं है। Beloved, religion can give you money, they can give you help, and it's good. और मेरे प्यारों में आपको बताना चाहता हूँ, जो धर्म है ना वो आपको पैसा दे सकता है, वो आपको मदद दे सकता है, ये अच्छी बात है। They can give charity, they can give you food, and it's good. और ऐसा है कि वो मदद दे सकते हैं, वो खाना दे सकते हैं और ये अच्छा है। But they can't give you what they don't have. और उनके पास जो नहीं है वो आपको वो नहीं दे सकते। That is the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा। They sell what I do have, I give to you in the name of Jesus Christ. They had the name of Jesus. और ऐसा है कि उन्होंने कहा जो कुछ हमारे पास है वो हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके What पास is the यीशु name of मसीह का Jesus? नाम था। और यीशु मसीह का नाम क्या है? You know, today if I say I know President Donald Trump, और अगर मैं आज कहूं कि मैं जो राष्ट्रपति है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें मैं जानता हूं, then I know him because I've heard of him. और मैं उसको उन्हें इसीलिए जानता हूं क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है। But if Donald Trump was my dad, I would have an intimate relationship and a quick access to all that my father has. Alright. And his. और ऐसा अगर देखें कि अगर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर वो मेरे पिता होते तो मेरी जो बातें हैं, मेरी चीजें सब अलग होती और उनके पास जो कुछ है उन सारी चीजों में मैं कार्यरत होता। It changes the whole scene scenario. और ऐसा है देखने का पूरी तरीके से नजरिया बदल जाएगा। They said in the name of Jesus Christ of Nazareth, और उन्होंने कहा यीशु मसीह नाजरी के नाम से rise up and walk. और उठकर चल फिर। How many of us can say that? और हम में से कितने जन ऐसा कह सकते हैं? People can walk, beloved. और मेरे प्यारों, लोग चल सकते हैं। The name of Jesus is beautiful. और यीशु मसीह का नाम खूबसूरत है, He is wonderful. वो अद्भुत है He is intimate. और वो घनिष्ठ है। When you know Jesus, you don't want to know anything else. और अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया तो अभी आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। You know, in Philippians 2:9, we won't go there. He says he became a servant, he became a man, he humbled himself, became obedient even unto death on the cross. और ऐसा है फिलिपियों के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि वो सेवक बना और वो इतना आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु भी उसने सह ली। He became a servant and became a man and humbled himself. और वो सेवक बना, एक मनुष्य बना और अपने आप को उसने नम्र किया। Hallelujah. हालेलुया। Wherefore the Bible says God gave him a name that is above all other names. और ऐसा है कि परमेश्वर ने उसे एक ऐसा नाम दिया जो सारे नामों से ऊंचा है। There is one name, beloved, और एक नाम है मेरे प्यारों, that is above every other name, जो सारे नामों से ऊंचा है above every other sickness, और हर एक बीमारी से ऊंचा है over every other lack and poverty, और हर एक कमी घटी और हर एक गरीबी के ऊपर है, over every depression, हर एक निराशा के ऊपर है, over every sickness, हर एक बीमारी के ऊपर है, over every destruction. हर एक नाश के ऊपर है। One and only one name, एक और सिर्फ एक मात्र नाम, the name of Jesus. वो है यीशु नाम। And he says God exalted his name और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसके नाम को ऊंचा उठाया and gave him a name above every other name, और उसे सबसे ऊंचा नाम दिया, whereby every knee will bow और हर एक घुटना उस नाम के सामने and टिकेगा, tongue confess हर एक जबान कहेगी that Jesus is Lord, कि यीशु मसीह प्रभु to है the glory of the Father. और यीशु मसीह की परमेश्वर की महिमा को Hallelujah. हालेलुया। One name, एक ही नाम name above all names. जो सारे नामों से ऊंचा है। Whatever you're going to today, और know जो what?
there is one name. और जो कुछ परिस्थिति में से आप जा रहे हो, लेकिन वो एक नाम आपको इनसे सारी You know, चीजें से a छुड़ाएगा। name talk about the character of the person. और ऐसा है, वो नाम जो है वो मनुष्य के चरित्र के बारे में बात करता है, It talks about the influence he has or she has over the person. और वो उन सारी चीजों के बारे में बात करता है कि किस प्रकार का प्रभाव वो डाल And सकता है। Jesus means savior. He will save you. और यीशु मसीह जो नाम है वो बचाने वाला है, उद्धार करता है, वो आपको बचाएगा। Matthew 1:21 says his name will be called Jesus. He will save you from your sins. और ऐसा है, मत्ती की किताब में जो यीशु नाम दिया गया है वो तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से छुड़ाएगा। Amen. आमीन। This man, and by verse 7 we read verses 7 and 8. And seizing him with the right hand, he raised him up, and immediately his feet and ankle were strengthened, and he began to leap and began to walk and to enter the temple with them, walking and leaping and praising God. और हम देखते हैं 7वां और 8वां वचन हम देखेंगे, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता हुआ और कूदता हुआ और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। And when your relationship with Jesus is strong and you know him intimately on a day-to-day basis, और जब हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ रिश्ता हो जाता है और रोज हम उससे अपनी चीजों के लिए, अपनी बातों के लिए उन चीजों को बात करते हैं, God has made all provision in Jesus Christ. और ऐसा है कि सारी चीजों को पहले से ही परमेश्वर ने यीशु मसीह में तैयार करके रखी है। The Bible says the fullness of the Godhead dwells in him bodily. और ऐसा है कि हम देखते हैं परमेश्वर की जो त्रित्व की प्रभुता है वो भरपूरी तरीके से यीशु मसीह में है। And if Christ is in you, then the Trinity, the Godhead is in you. और हम देखते हैं जब अगर मसीह हमारे अंदर है तो परमेश्वर की त्रित्व जो है वो हमारे अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। If you understand this, I can stop right away here. और ऐसा अगर आप इन चीजों को समझ जाओ तो मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगा। It's so nice to have a revelation, or deep revelation of this. और एक महान, अगर हम देखें, एक प्रकाशन और एक गहरा प्रकाशन हमें मिलना बहुत What do जरूरी you है। say? यस। Amen. We can laugh, we can dance, we can leap like this man. He got up. Some of us are dismembered, lame in our walk, and troubled in heart, and we are not walking. But the name of Jesus made this man walk, leap, and dance, praising God. और हम ऐसे ही आनंद मना सकते हैं, हम नाच सकते हैं, कूद सकते हैं जब हम यीशु मसीह को जानते हैं। उसी यीशु मसीह ने जो इस लंगड़े व्यक्ति को ठीक कर दिया, वो नाचता हुआ कूदता हुआ मंदिर में गया। तो शायद हमारे आज चलन में हम कुछ निराशा में होंगे या गड़बड़ी में होंगे, लेकिन यीशु मसीह आपको आनंद देने पर है। Let's go to verse 16. आइए हम देखें 16वां वचन। Peter tried to explain how this man got healed. और पतरस यहाँ पे समझा रहे हैं कि कैसे ये मनुष्य ने चंगाई पाई। I want to remind you that we are talking about the name of Jesus, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम यीशु मसीह के नाम से बात कर रहे हैं। the Word that became flesh वो वचन जो देहधारी हुआ, and dwelled amongst us. जो हमारे बीच में वास किया। And he says in verse 16, on the basis of faith in his name, the Or- name of Jesus, which has strengthened this man, which is see and know. Faith comes to by giving him health, perfect health in the presence of you all. और 16 वचन यूं कहता है, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिए। Hallelujah. हालेलुया। Not only you have the name, सिर्फ आपके पास ये नाम ही नहीं है, but you have faith in the name. और इस नाम में आपको पूरा विश्वास है। And the faith that can work wonders. और ऐसा है कि जो विश्वास है वो अद्भुत कामों को कर सकता We'll है। go to chapter 4. और हम देखेंगे चौथा अध्याय की तरफ हम जाएंगे Verse 7. और 7वां वचन हम देखेंगे। Lot of persecution followed that. और इसके पीछे बहुत सताव हम देख सकते हैं, बहुत सताव हुआ। अगर आप आगे The पढ़ते हैं Jews तो। came to know that this man was over 40 years. There was proof that he was healed. Everybody saw him begging. Now he is walking, dancing.
and leaping and praising God. और 27 इस प्रकार से हुआ, यहूदी लोग इसके विरुद्ध हो गए कि ये व्यक्ति जो 40 वर्ष का था, जो सबने देखा था कि वो भीख मांगता है, वो लंगड़ा है, लेकिन अभी वो नाच रहा है, कूद रहा है और उसने चंगाई पा ली है। Beloved, the name of Jesus will bring miracles that are with proof. और ऐसा है मेरे प्यारों कि जो नाम यीशु मसीह, जो यीशु नाम है, वो सबूत के साथ चमत्कार या चिन्हों को लाएगा। We're going to hear a testimony of healing from cancer later on. और आगे हम जो कैंसर से जो पीड़ित है उनको परमेश्वर ने जो चंगाई दी उसकी गवाही हम देखेंगे। Nothing can stand before the name of Jesus. कोई भी चीज यीशु मसीह के नाम के सामने खड़ी नहीं हो सकती। Verse 7 और or chapter 7वां 4. वचन हम देखेंगे। And then they placed him to enter, to inquire, by what power, on what name have you done this? और 7वां वचन यूं कहता है 4वां अध्याय का, वो उन्हें बीच में खड़ा कर कर पूछने लगे कि तुम ये काम किस सामर्थ से और किस नाम से तुमने किया है। Maybe you are wondering, और आप शायद कल्पना करते होंगे in what name and what power can we do what the apostle did the works of God? कि कौन से नाम से, कौन से सामर्थ से हम लोग कर सकते हैं, या जो प्रेरित है उन्होंने ये चीजों को किया। And the Jews wanted to know, the priest Ananias and all the high priests, they wanted to know, what is this? Something new we are seeing. How are you doing this? और जो यहूदी थे, जो याजक थे, जो महायाजक थे अननायास, हम देखते हैं कि वो लोग जानना चाहते थे कि आपने ये सारी चीजों को कैसे किया है। We can't deny what has happened. और जो हुआ है उसको हम नकार नहीं सकते। A man who was begging is now walking and dancing. और वो जो लंगड़ा व्यक्ति जो भीख मांगता था, अब वो चल रहा है, नाच रहा है और कूद रहा है। So they're saying, wow, how he did this? और वो लोग अचंभित हो गए कि कैसे आपने ये चीजों को किया है। In verse 10 we read, they explain, और 10वें वचन में वो उन्हें समझाते हुए वो हम देखते हैं, let it be known to you all and to all the people of Israel by the name of Jesus Christ, the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead, and by name that man stands here before you in good health. आमेन। और हम देखते हैं 10वां वचन, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर के मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। The same man Jesus who died was crucified and raised from the dead by the power of the Holy Spirit. और यही यीशु मसीह जिसको मारा गया, जो क्रूस पे चढ़ाया गया और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाया गया, By that name this man stands today. और उसी नाम से वो व्यक्ति आज खड़ा है। Beloved, what name you stand on? और ऐसा मेरे प्यारो, आप कौन से नाम से खड़े हो? By which name you stand? और आप कौन से नाम से खड़े हो? There are many names today. और बहुत सारे नाम हैं आज। There's wealth, influence, power, और ऐसा है, पैसा है, प्रभाव है, सामर्थ है education. और शिक्षण है। By what name you stand? आप कौन से नाम से खड़े हो? This man stood in good health by the name of Jesus. और ये व्यक्ति खड़ा हुआ अच्छे स्वास्थ्य से यीशु मसीह के नाम से। And last verse 12. और 12 वचन, आखिरी वचन हम And देखेंगे। they said, there's salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. आमेन। 12 वचन यूं कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। There is no name like the name of Jesus. और कोई भी नाम नहीं है यीशु मसीह के नाम के सिवा। Okay. ठीक है। Anyone who comes against the name will be defeated. और कोई भी इस नाम के विरुद्ध आता है वो हार जाएगा। You may say, what is good in the name? और हम भी सोचते हैं कि ये नाम में क्या अच्छी बात है। God preordained, predetermined that Jesus will come into the world. और परमेश्वर पिता जो है उन्होंने पहले से ही निर्धारित करके रखा था कि यीशु मसीह इस संसार में आएंगे And live with us, और जो हमारे साथ रहेंगे, walk with us, हमारे साथ चलेंगे and then live in us. और फिर हमारे अंदर रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You can have a Holy Spirit today. और आज पवित्र आत्मा आपके अंदर हो सकता है You can be baptized with the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पा सकते हैं You can receive Jesus today. और आप यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं आज। You can know the power and authority of the name. और आज उस नाम की सामर्थ और अधिकार को आप जान सकते हैं। You know, I want to just take you to two verses. और हम
आपको दो वचनों की तरफ ले जाना चाहता हूँ। John 14, यूहन्ना का 14वां अध्याय 13 and verse 13 and 14. और उसका 13वां और 14 वचन हम देखेंगे। Let's read in Hindi. यस 13 एंड 14 राइट। आइए हम देखें यूहन्ना का 14वां अध्याय 13 और 14 वचन। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. We'll read that again. एक बार फिर से हम उसे पढ़ेंगे ध्यान से। 13 वचन यूं कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। Whatever you ask in my name, I'll do it. और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। What do you want to ask today? और मैं आपको पूछता हूं आज कि आपको क्या चाहिए। Whoever asks, whatever you ask, कोई भी मांगे और कुछ भी मांगे in my name, मेरे नाम से, that means not just entering in, adding in Jesus' name at the end of your prayer. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रार्थना के आखिर में यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये बातों को सिर्फ उसमें मिलाए नहीं, But knowing the fullness of the Godhead in you. लेकिन आपके अंदर जो परमेश्वर है उसकी परिपूर्णता या पूर्णता को आप समझे, Knowing the reality of Jesus' presence in you. और यीशु मसीह की जो उपस्थिति की जो सच्चाई है उसे आप जाने। If you pray in that name, whoever prays, whatever you ask, God will give you. और ऐसा है कि जो कोई वो नाम से प्रार्थना करता है और जो कुछ आप उस नाम से मांगते हो परमेश्वर उसे पूरा We करता है। go to Acts 6, John 16, 23, 24. आइए हम देखिए उसी यूहन्ना के 14वें अध्याय में 23 और 24वें वचन को हम देखेंगे। Read that in English. यूहन्ना पुस्तक 14 अध्याय और 23वें वचन से हम आगे देखते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा परपिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता है। Chapter 16. सॉरी, माफ कीजिए, हम देखेंगे Chapter 16. यूहन्ना का 16वां अध्याय और 23 और 24वें वचन को हम देखेंगे। उस दिन तुम मुझसे न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगो तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Jesus is saying, in that day, और यीशु मसीह कहते हैं उस दिन, up to now you are not prayed in my name. और अब तक आपने मेरे नाम से प्रार्थना नहीं की है, But in that day when I resurrected and gone to be with the Father, और उस दिन जब मेरा पुनरुत्थान होगा और मैं पिता के पास रहूंगा, you will ask the Father in my name, और आप पिता के पास मेरे नाम से मांगोगे and you will receive that your joy may be full. और तब आप उन चीजों को, आपको वो चीजें मिल जाएगी और आपका आनंद पूरा हो जाएगा। Beloved, there is no greater joy than answered prayer. और मेरे प्यारो, बोलते हैं ना कि प्रार्थना का उत्तर जब मिल जाता है उससे बड़ा आनंद की बात और कोई नहीं होती। When we pray to the Father जब हम पिता से प्रार्थना करते हैं in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से by the power of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से, nothing is far from us. और कोई भी चीज हमसे दूर नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Think about what God wants to give you today. और सोचे कि परमेश्वर आज आपको क्या देना चाहता है। Peace, शांति, healing, चंगाई, good relationship, अच्छा रिश्ता intimacy with Him, और उसके साथ घनिष्ठ रिश्ता, the treasures of heaven. और स्वर्ग के जो खजाने हैं वो आपको देना This चाहता है। Jesus, remember, He's a king और ये जो यीशु मसीह है वो राजा है and He has a kingdom. और उसका एक राज्य है। He told Pilate, और उसने पिलातुस से कहा, my kingdom is a different kingdom. और मेरा जो राज्य है वो अलग राज्य है। Amen. आमीन। So you belong to this kingdom. और आप इस राज्य के हो, वारिस We'll हो। go to the last verse, Acts 10:38. और हम आखिरी वचन के पास जाएंगे, प्रेरितों का काम 10वां अध्याय और 38वां वचन हम देखते Title हैं। of the topic today is name above every name. और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आज का जो विषय है वो है नाम जो सब नामों से ऊंचा है। Throughout the world, in all the three levels of the universe, और सारे संसार में और सारे ब्रह्मांड के 3
जो स्तर है उनके ऊपर one name, एक ही नाम, one name. एक ही नाम। Repeat after me. मेरे पीछे दोहराए, Jesus. यीशु। Hallelujah. हालेलुया। You felt something? क्या आपको कुछ महसूस हुआ? Last verse, आखिरी वचन हम देखेंगे, 10:38. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और 38वां वचन हम देखेंगे। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Hallelujah. Hallelujah. How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and with power. यस, और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह का अभिषेक किया था पवित्र आत्मा देकर और सामर्थ को देकर। What does the anointing of the Holy Spirit do? और पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या चीजें वो करता है And how we went about doing good. और कैसा वो भलाई के काम करता रहा। The Holy Spirit is meant to do good to others. और पवित्र आत्मा का काम ही है कि वो लोगों के लिए या लोगों के साथ भलाई का काम करे, Bring changes in the atmosphere, in the world, और सारे वातावरण में बदलाव लाए, संसार में बदलाव in लाए, families, in marriages, और परिवारों में, शादियों में वो बदलाव लाए। and healing all who are oppressed by the devil. और ऐसा है उन सारे लोगों को चंगा करता जो शैतान से सताए हुए हैं। You know, the devil is a harasser. और ऐसा शैतान जो है ना वो सताने वाला है। Many places in Matthew 12 you read, Jesus rebuked the devil, cast out demons, and people got their sight back and their hearing and their speech back. और ऐसा है कि हम देखते हैं मत्ती के 12वें अध्याय में अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने शैतान को धिक्कारा और लोगों को उन चीजों से छुटकारा दिया, चंगाई दी और लोग ठीक होते गए। We're going to go to hear a great testimony in some time. और ऐसा है कि आने वाले क्षण में हम एक अच्छी और परमेश्वर की महान गवाही को सुनेंगे। Please don't log out और अभी उठकर न चले जाएं, because you are in for a treat today. और आज आप एक नए चीजों को जानने पर हैं। When God reigns and rules and abides in us, all good things follow. और परमेश्वर जब राज्य करता है, हमारे अंदर रहता है, तो सारी अच्छी चीजें हमारे साथ होती है। Yeah, difficult times come. हाँ, मुश्किल समय आते हैं, God is with us. परमेश्वर हमारे He is साथ है। Emmanuel, God is with us. और इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ है। I want to pray for you today, और मैं आपके लिए आज प्रार्थना करना चाहता especially हूँ, for healing, और खास करके चंगाई के लिए। because the anointing of the Holy Spirit is here in this place. और इस जगह पे परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक है, Jesus is with you, He is और- with you. और यीशु मसीह आपके साथ है। And as I pray, और जैसे मैं my प्रार्थना brother करता हूँ Samir, और भाई समीर के साथ, you're going to heal today. और परमेश्वर चंगाई देंगे। Please put in the comments if you have any prayer request, और आपकी कोई भी प्रार्थना विनती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी प्रार्थना विनती आप डाल or सकते you हैं। can write to us or phone us. We'll give you the phone numbers at the end. और ऐसा है कि आप हमें लिख सकते हैं या हम पर फोन पे बात कर सकते हैं, हम आपको फोन नंबर आखिर में देंगे। Today I'm going to pray especially for those who can't walk, are lying down, depression, those whose knees are paining, joints are paining, knee problem, neck problems, bone problems, especially for these items I'm going to pray. और ऐसा है कि मैं आज प्रार्थना करने वाला हूँ जिनको जो चल नहीं सकते हैं, जो लेटे पड़े हैं, जिनके घुटने में दर्द है, जिनके कमर में दर्द है, जिनके गले में दर्द है, उन सारे चंगाइयों के लिए आज मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। You can pray a simple prayer. और एक सीधी सादी प्रार्थना आप कर सकते हैं। Jesus, I repent from all of my sins. यीशु मसीह में मेरे सारे पापों से पश्चाताप करता हूँ, Forgive me. मुझे क्षमा करें, Come into my heart. मेरे हृदय में आए Be my friend and guide. और मेरे दोस्त बने, मुझे अगुवाई करें, Holy Spirit, fill me today. और पवित्र आत्मा मुझे आज भरे, Be my friend. मेरे दोस्त बने Guide me in all truth. और सारी सच्चाई में मेरी अगुवाई करें। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते We'll pray in English and Hindi now for you. और हम- Father, in the name of Jesus, हैं। और पिता यीशु मसीह के नाम से, by the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, I rebuke the devil and all his works. और ये शैतान को हम धिक्कारते हैं, उसके सारे कामों को हम धिक्कारते हैं। I command healing in every person's life who's hearing us at this time. और इस समय में जो व्यक्ति हमें देख रहा है उन सारे व्यक्तियों के अंदर हम तेरी चंगाई की घोषणा करते हैं। I pray for joints in the vertebrae, spines, necks,
joints be healed in the name of Jesus. और हर एक जोड़ों में, हर एक घुटनों में, हर एक कमर के दर्द में, हर एक गले के दर्द में परमेश्वर हम उस जगह पे तेरी चंगाइयों को मांगते हैं। I command all depression to leave. और सारे परमेश्वर निराशाओं को हम आगे देते कि निकल All जाए। mind issues like autism, और जो भी ऑटिज्म का इशू है पिता परमेश्वर, bipolar, बाइपोलर पिता to परमेश्वर, leave in the name of Jesus. इसी वक्त निकल जाए यीशु के नाम I से। command stability in everyone's life, और हर एक के जीवन में मैं आज्ञा देता हूँ कि स्थिरता आए in the mind, spirit, and bodies. उनके मन में, आत्मा और प्राण में प्रभु। In Jesus' name I pray. और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे मेरे प्यारे। Wait for the testimony. Don't leave. और आप गवाही के लिए रुके, खत्म न करें। Amen. आमीन। Good morning, church. I'm so blessed to be in this place. First of all, I want to give all the glory and honor to my Jesus. Jesus is my superhero. He's my healer. He's my doctor. He's my everything. Because of my Jesus, today I'm here. That's why I want to give all the glory to Him. And 2018, my mom came from Mangalore and she wanted to go for an eye test. तो मम्मी ने कहा बेटा मुझे आई टेस्ट करने को जाना है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा हम जाएंगे। और उस दिन संडे था और संडे का दिन मैं किसी रीति से मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ संडे का दिन। और संडे मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट दिन है कि संडे हम कलीसिया में साथ में मिलते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं और मैं संडे को मिस नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि आप मम्मी को लेकर जाओ टेस्ट के लिए। और मेरा भाई को मैंने कहा कि मैं मंडे को जाऊंगी। तो मंडे को वहाँ पर फ्री टेस्ट नहीं था, सिर्फ संडे का दिन था। तो मैं मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गई। वहाँ पर मम्मी का पूरा टेस्ट हो गया और डॉक्टर ने कहा कि ये टेस्ट के लिए बहुत इतना पैसा लगेगा। तो मम्मी ने कहा कि बेटा ये बहुत ज़्यादा पैसा हो रहा है, हमको यहाँ नहीं करना है, हम और किधर दूसरा हॉस्पिटल में हम जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। तभी मैंने एक बोर्ड को देखा, वहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ था महिलाओं के लिए फ्री टेस्ट है। तो मेरे मम्मी को कहा मैंने, मम्मी आप क्यों नहीं जा रहे हो, फ्री टेस्ट में है, वहाँ पर फ्री टेस्ट लगा हुआ है, आप जाइए। तो मम्मी ने कहा मुझे जरूरत नहीं बेटा, आप जाओ। तो मैंने बोला मैं क्यों जाऊँ टेस्ट के लिए, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं काम करती हूँ, केक का क्लासेस लेती हूँ, केक ऑर्डर लेती हूँ, इस्लाम एरिया में जाके मिनिस्ट्री करती हूँ हमारे चर्च का, और दूसरा कोई बहन है उनके साथ मैं जाके मिनिस्ट्री करती हूँ। तो मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, मैं एक्टिव हूँ। फिर भी मम्मी ने कहा कि बेटा तू जाओ कि वहाँ पर फ्री टेस्ट लगा हुआ है, तुमको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है। वहाँ पर मैंने टेस्ट के लिए गई और डॉक्टर ने सब चेकअप किया और डॉक्टर ने कहा कि नेक्स्ट डे तू जाके जब तू घर पे जाएगी तुम जाके सोनोग्राफी कर लेना। तो मैं नेक्स्ट डे जाके सोनोग्राफी किया और सोनोग्राफी में दिखाई दिया कि तुम्हारा मेरा यूट्रस का जो थिकनेस है तो 10.5 सेंटीमीटर था, तो काफी बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम डॉक्टर के पास जाके सारा वापस एक बार टेस्ट कराओ और तुम्हारा सारे टेस्ट को बायोप्सी के लिए भेज दो। तो मैं दूसरा दिन मेरा भाभी के साथ मैं डॉक्टर के पास गई और वहां पर पूरा टेस्ट किया और मैं अंदर थी और भाभी मेरे भाभी और नर्स लोगों के साथ बैठी थी। और नर्स लोगों ने पूछा उनको ये तुम्हारा कौन लगती है। तो मेरे भाभी ने कहा कि ये मेरा सिस्टर भाभी है, सिस्टर मेरा। तो उनको पूछा उसका ऑपरेशन अभी कभी है, आगे का प्रोसीजर क्या है। तो नर्स लोगों ने बोला उसको अभी कुछ भी नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर कैंसर अंदर फैल गया है, तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, मैं रिपोर्ट के लिए वेट कर रही थी। और 7 दिन के बाद मेरा रिपोर्ट आ गया और रिपोर्ट में उसमें लिखा है कि तुझे यूट्रस में कैंसर है। ये देखिए ये मेरा रिपोर्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर यूट्रस में कैंसर था। तो वो रिपोर्ट देख के मैं बहुत टूट गई और मैं रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा भाई मेरा परिवार सब सर मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे सहायता किया, मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि दीदी आप चिंता मत करो, यीशु आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे लोगों ने भी बोला कि आपको कुछ नहीं होगा। फिर मेरा पास्टर है जो कलीसिया है उनको भी बताया कि आप मेरे लिए प्लीज प्रार्थना कीजिए। पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया और पास्टर ने मुझे एक बहुत अच्छा वचन दिया और ये वचन को मैं आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ।
रोमन्स चैप्टर 8:11 में उसमें ऐसा लिखा है, ये वचन मैंने बहुत बार पढ़ लिया है, लेकिन उस टाइम में ये वचन मेरा जीवन में काम आया। यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीहा को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नाशवान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है वो जिलाएगा। ये वचन इतना सामर्थ्य है प्यारो, ये वचन मेरा जीवन में कार्य किया उस समय, क्योंकि उसमें लिखा है हमारा सिर्फ आत्मा ही नहीं लेकिन हमारा शरीर को भी वो उठाता है। ऐसा परमेश्वर है हमारा जीवन में जो कार्य करता है। निराश में हमें आशा देने वाला परमेश्वर है, वो हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो हमारा जीवन का सोता है, आशीष का सोता है। ये वचन को मैंने पक्के रखा और मेरे जीवन में अप्लाई किया और वो वचन मेरे जीवन में काम आया। और जितने लोगों ने मुझे सहायता किया, मेरे कलिसिया के लोगों ने सहायता किया, मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे परिवार मेरे साथ है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और दूसरा दिन मेरे अलग दूसरे कलिसिया के लोग मेरे से बात करने लगे इसके मेरा रिपोर्ट के बारे में। दीदी आपको ये डॉक्टर ने कहा कैंसर है, ये रिपोर्ट आपको बता रही है, आप दूसरा डॉक्टर का सलाह क्यों नहीं लेते हो? तो मैं दूसरा डॉक्टर के पास मेरे भाभी के साथ और मेरे जो दूसरा कलिसिया के लोग हैं उनके साथ मैं गई और डॉक्टर को रिपोर्ट बताया। और डॉक्टर ने बोला देखो मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कैंसर तुम्हारा अंदर है, लेकिन कितना अंदर गहरा गया और क्या है हम अभी नहीं बता सकते। वो डॉक्टर ने बड़ा डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट उनको फोन किया और बताया, एशियन कैंसर का हॉस्पिटल के डॉक्टर को फोन किया और डॉक्टर ने बोला कि अब इसको ज्यादा हमको वेट नहीं करना है, उसके लिए ऑपरेशन करना है। तो 5-6 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन वहां पर हुआ और मेरा ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हुआ और डॉक्टर ने रिपोर्ट को भेज दिया, वापस टेस्ट के लिए रिपोर्ट को भेज दिया और 5-6 दिन के बाद वो रिपोर्ट आ गया और रिपोर्ट में सिर्फ हमारा यूट्रस में कैंसर था और किधर भी फैल नहीं गया। ये डॉक्टर ने बोला, ये नर्स लोगों ने बोला कि पूरा फैल गया, लेकिन ये डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये हमारा जो ऑपरेशन किया वो डॉक्टर बोलते तुम अद्भुत रीति से बच गए, क्योंकि ये कैंसर 5 साल से तुम्हारा अंदर है तो कहीं तुम्हारा फैल नहीं गया। लेकिन वो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा परमेश्वर ने तुझे बचाया है। मैंने बोला धन्यवाद, मेरा परमेश्वर ने मुझे बचाया है, क्योंकि परमेश्वर हमारा ख्याल रहता है, करता है, हमें संभालता है, हमें चंगाई करता है, वो हमारा चंगाई करने वाला परमेश्वर है और मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी। उसके बाद जो हॉस्पिटल में 10 दिन थी वहां पर और 3 दिन के बाद वापस मेरा पेट में पेन चालू हो गया और डॉक्टर को कहा मैंने कि मेरा पेट में वापस पेन हो रहा है, तो मेरा पेट के अंदर वापस पानी भर गया था, फ्लूइड कलेक्शन था। तो डॉक्टर ने बोला कि उसी डॉक्टर के पास वापस जाना, क्योंकि मेरा हस्बैंड यहाँ नहीं रहते थे, बाहर गांव में थे। जब ये ऑपरेशन के समय मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए और मेरे हस्बैंड को लेकर और मेरा भाई को लेकर मैं वापस हॉस्पिटल में गई, एशियन कैंसर हॉस्पिटल में सायन में गई। वहां पर डॉक्टर ने बोला देखो अभी ये बहुत डेंजर सिचुएशन है, तुम्हारा जो फ्लूइड कलेक्शन है अंदर निकालेगा तो भी प्रॉब्लम है, नहीं निकालेगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग एस्पिरेशन करके नीडल्स डाल के वो फ्लूइड हम निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर बाई चांस हम लोग जो नीडल डाल के जो निकालेगा तक किधर भी नस है तुम्हारा, जो शरीर का जो भी पैर का जो नस है किधर भी तुमको वो नीडल वो लगेगा, वो जीवन भर के लिए तुम पैरालाइज हो सकती है। तो हम लोग वापस कंफ्यूजन में आ गए, मैं और मेरा हस्बैंड। तो हस्बैंड ने बोला कि देखो टेंशन मत करो, जिस परमेश्वर ने तुमको बाहर लेके आए, वो कतरों से तुमको बाहर लेके आया, आज वही परमेश्वर हमारे साथ है, हमको बचाएगा, हमको संभालेगा। और जब हम दोनों ने मिल के हॉस्पिटल में प्रार्थना किया तभी एक व्यक्ति ने हमको देख रहा था, हम प्रार्थना करने के समय, शायद वो मसीह था, विश्वासी था। तो जब ये प्रार्थना होने के बाद वो आया हमारे साथ और बोला कि दीदी आपको कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा मैं भी एक विश्वासी हूँ, मैं मसीह को जानता हूँ। उसने बोला कि मैं एक मसीह हूँ, क्योंकि उसने कहा कि आप बिंदास जाइए, जो भी है जो फ्लूइड आप निकाल दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। फिर डॉक्टर ने हम लोग के लिए आधा घंटे का टाइम दिया था और डॉक्टर ने बोला आधा घंटे के बाद डिसाइड करके आप लोग मेरे पास आना। हम लोग वापस डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बोला कि तो क्या तुम लोग ने डिसाइड किया? मैंने बोला हाँ डॉक्टर, हम लोग ने डिसाइड किया, अब जो भी काम करना है आगे आप शुरुआत कीजिए। तो डॉक्टर ने पूरा जो भी फ्लूइड था मेरा पेट के अंदर वो सारे निकाल दिया। उसके बाद
अभी तक मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अभी मेरा ऑपरेशन होके 3 साल हो गया, अभी तक मैं अट्टी गट्टी हूँ, तंदुरुस्त हूँ। अभी भी मैं क्लासेस लेती हूँ, केक का क्लास लेती हूँ, ऑर्डर लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो मैं सारे गौरव और महिमा मेरे प्रभु यीशु मसीह को मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझे बचाया, उसने मुझे नया जीवन दिया, चंगाई किया और अभी तक उसने मुझे संभाल के रखा। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। यदि कोई वीडियो को देख रहा है, नया है, अभी कोई आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, यदि यीशु मसीह को आज अपनाना चाहते हो आपके जीवन में, यदि आप रेडी है प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए, क्योंकि जो कोई नया लोग देखते हैं, ये वीडियो को देख रहा है, मैं जानती हूँ सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, आजादी देने वाला परमेश्वर है। और उस सामर्थ्य परमेश्वर जैसा मेरे जीवन में उस परमेश्वर ने काम किया, आज उसी रीति से आपका जीवन में भी आप परमेश्वर काम करना चाहते हैं। यदि यीशु मसीह को आपके जीवन में आप अपनाना चाहते हो, आप मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए। अब मैं आपको प्रार्थना करती हूँ, आपको आंखों को बंद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय को दरवाजे को खटखटा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन की लिखा है, रिवलेशन में 3 चैप्टर में लिखा है, मैं आपका दरवाजे को खटखटा रहा हूँ। यदि मेरे लिए वो द्वार खोलेगा, मैं उनके भीतर आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय को दरवाजे को खटखटा रहा है। जैसा मैं यहाँ पर आई, जब ये लोग ने मेरे लिए दरवाजा खोला तो मैं यहाँ पर आई। यदि वो लोग दरवाजा नहीं खोलते थे, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती थी। तो आज आपका हृदय का दरवाजा को प्रभु यीशु मसीह खटखटा रहा है। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आना चाहते हैं, आपका जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं, आपके बच्चों को जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं। कोई भी कितना भी पाप आप करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको हर एक पापों से, श्रापों से आपको छुटकारा देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हम आपके लिए इस समय प्रार्थना करते हैं। आपको आंखों को बंद कीजिए और मेरे पीछे ये प्रार्थना को दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूँ। मैं जानता हूँ बचपन से मैंने बहुत सारे पाप किया है। मैं मेरा जीवन में प्रभु यीशु आपको मेरा मुक्तिदाता और मेरा उद्धारकर्ता के रूप में मैं आपको मेरे जीवन में ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरा हृदय का दरवाजा को मैं खोल देता हूँ। आओ प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में, मेरे जीवन को परिवर्तन कर, मेरे परिवार को परिवर्तन कर, पाप का जीवन से मोड़कर नया जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह तू मुझे सामर्थ्य दे। यदि आपने ये प्रार्थना किया है तो जरूर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया है। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में नया बना देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसके जीवन नया हो जाता है। पुरानी बातें बीत चुकी है और नया सब कुछ नया हो रहा है। ये सब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाले। अभी मैं आपको सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। स्वर्गीय पिता, हम जी धन्यवाद करते हैं जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके घर में जो भी परेशानी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आज उनके जीवन में छुटकारा, हर एक शक्ति से, शैतान की शक्ति से, बीमारी से, श्राप से, हर एक गंदगी से, बुरे आदतों से हर एक लोगों को परमेश्वर तू छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में सामर्थ्य, तेरे लहू में विजय है। आज वो विजय, वो लहू परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने दो। हर एक अंधकार का शक्ति से परमेश्वर उनको छुड़ाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सारे लोगों के लिए विनती करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको जीवन में आजादी, चंगाई, बरकत और उन्नति हम मांगते हैं। जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी के जीवन में परमेश्वर के शांति और अनुग्रह सदैव बने रहे। आमीन।